my topic is dietary management and celiac disease. So, let's start with the celiac disease. Celiac disease is an autoimmune disease that is characterized by an aberrant response to dietary gluten in genetically susceptible individuals that results in small intestine injury and can be associated with diverse systematic consequences. And celiac disease is also defined as permanent sensitivity to gluten in wheat and related protein found in barley. It occurs in genetically susceptible individuals and is manifest as an immune-mediated enteropathy as defined by characteristic changes seen on intestinal histology. Now, symptoms of celiac disease. There are numerous studies demonstrating that children with celiac disease have gastrointestinal symptoms such as diarrhea with failure to thrive, abdominal pain, vomiting, constipation, and abdominal distension. Data suggests that prevalence of celiac disease may be increased 2 to 10 times in children with some of these GI symptoms. The classic form of celiac disease in children consists of GI symptoms starting between 6 and 24 months of age after the introduction of gluten in the diet. Infants and young children typically present with chronic diarrhea, anorexia, abdominal distension, abdominal pain, poor weight gain, and vomiting. Severe malnutrition and even cachexia can occur if the diagnosis is delayed. Now, older children with celiac disease presenting with GI manifestations may have onset of symptoms at any age. GI symptoms in older children include diarrhea, nausea, vomiting, abdominal pain, bloating, weight loss, and constipation. Now, the next is non-gastrointestinal manifestation. There is strong evidence for an increased prevalence of celiac disease in children with dental enamel defects involving the secondary dentation. Patients with untreated celiac disease are at risk for developing low bone mineral density and osteoporosis. Reduced bone mineral density in adults improves on gluten-free diet, but celiac disease patient may be at increased risk for bone fractures. Studies in children with celiac disease have shown complete reversal of low bone mineral density after the introduction of gluten-free diet. There is moderate evidence for an increased prevalence of celiac disease in children with short stature. There is moderate evidence that adolescent female with untreated celiac disease may have delayed onset of menarche. Iron deficiency anemia resistant to oral iron supplementation is the most common non-GIC manifestation of celiac disease and is often the primary clinical manifestation in adults. Between 5 to 8.5% of adults with unexplained iron deficiency. Now, celiac disease in Indian children. Here we have shown the data of Indian children. Celiac disease was first reported in India in 1966. In one study, the male and female ratio was 3:2. The atypical presentations were short stature in 20%, anemia in 14%, constipation in 5%, family history of celiac disease in 5%, and rickets in 1.5% of the patients. Now, the common association observed in children were type 1 diabetes in 1.5%, autoimmune hepatitis in 1.5%, IgA deficiency in 6%, juvenile rheumatoid arthritis in 0.7%, Down syndrome in 0.7%, and nephrotic syndrome in 0.7% of the patients. Now, who to test for celiac disease? मतलब हम किसके लिए celiac disease किसका टेस्ट करते हैं? It is recommended that celiac disease be an early consideration in differential diagnosis of children with failure to thrive, persistent diarrhea, and also with other persistent GI symptoms, including recurrent abdominal pain, constipation, and vomiting. Testing is also recommended for the children with non-GI symptoms of celiac disease, that is short stature, delayed puberty, and iron deficiency anemia resistant to oral iron supplementation. Now, screening test for celiac disease. The IgA human anti-tissue transglutaminase antibody testing was done using commercially available ELISA kits. An anti-TTG titer of more than 4 units per ml was considered as positive for celiac disease. Now it is 3 units per ml was considered as positive for celiac disease. And the diagnostic criteria for celiac disease is, the criteria for diagnosis of celiac disease were a positive anti-TTG and an intestinal biopsy showing bilious abnormality. All respondents who were suspected to suffer from celiac disease based on screening symptoms, that is positive anti-TTG and the bilious atrophy, were counseled about the disease, its natural course, and available treatment. All of them were counseled by a nutrition specialist and advised to take a gluten-free diet. In addition, they were also given iron, calcium, and multivitamin supplements. And a follow-up was also made at 3 months of the age, at the 3 months. Then how to treat celiac disease? Now, this is very important slide, how to treat with celiac disease.
The only treatment currently available for celiac disease is स्ट्रिक्ट एडरेंस टू ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट फॉर द लाइफ। इसका मतलब यह है कि हम जिस समय पेशेंट को एक बार सीलियक डिजीज डायग्नोज हो जाता है तो उसे हम लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट एडवाइस करते हैं। नाउ द ग्लूटेन फ्री डाइट, देन नेक्स्ट इज व्हीट एंड बार्ली आर द प्रीडोमिनेंट ग्रेन्स दैट कंटेन ग्लूटेन। मतलब गेहूं और जौ ऐसे हमारे दो मेन ग्रेन्स हैं जिसमें ग्लूटेन होता है, तो इसे हमें डाइट से टोटली हटाना है। नेक्स्ट, फॉर ट्रीटिंग सीलियक डिजीज, व्हीट, बार्ली एंड प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड फॉर द होल लाइफ। And there is evidence that small amounts of gluten ingested on regular basis can lead to mucosal changes. It is very important that कि अगर हमारा एक बार पेशेंट को सीलियक डिसीज डायग्नोज हो जाता है तो हमें ये वेरी श्योर होना है कि पेशेंट को मतलब एक स्मॉल अमाउंट में भी ग्लूटेन उसके डाइट में नहीं जाना चाहिए। तो देयर इज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द ग्लूटेन फ्री डाइट। नाउ करेंटली प्रोडक्ट कंटेनिंग लेस देन 20 ppm is being considered in the proposed Codex Alimentarius guideline to define gluten free. The National Food Authority has recently redefined their term for gluten-free. By their definition, gluten-free now refers to no gluten. Now, we have another group is showing not allowed food items and other group is showing allowed food items. So first we will discuss about, भी हमारी इसके पहले वाली जो स्लाइड है कि एक बार पेशेंट को सीलियक डिजीज डायग्नोज हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स को हम फॉर द होल लाइफ ग्लूटेन फ्री डाइट एडवाइस करते हैं। अब ग्लूटेन फ्री डाइट में जैसे अभी हम देखा कि दो हमारे मेजर सीरियल्स हैं लाइक गेहूं और जौ, इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट व्हीट एंड बार्ली। तो बोथ प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड फॉर द लाइफ। तो जब हमने देखा कि जब गेहूं और जौ हटा दिया गया तो हमारे इसके अलावा जितनी भी सीरियल्स हमारे अलाउड है वो इस लिस्ट में शोड है। जैसे अलाउड फूड आइटम्स में हमने पहले लिखा कि हमारा इंडियन थाली में होता है दाल, चावल, रोटी एंड सब्जी। तो जब हमारा रोटी हट जाता है खाने से तो पेशेंट हमारा पहले पूछता है कि हम रोटी किस चीज की खाएंगे। चावल तो ठीक है, चावल सब्जी दाल इज अलाउड, तो हम रोटी किस चीज की देंगे। तो हमारा पहला आंसर यही होता है कि सीरियल जो हमारा गेहूं और जो है उनको हटाने के बाद जितने सीरियल और ग्रेन हमारे पास अवेलेबल है उसका हम रोटी, पूड़ी या पराठा दे सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया राइस। राइस मतलब एनी वेराइटी ऑफ राइस, मतलब जितने भी तरीके के हमारे इंडिया में चावल पाए जाते हैं उसको हम दे सकते हैं। इन द सेम वे राइस के जितने प्रोडक्ट हैं लाइक जैसे वेरी कॉमन हमारे पास होता है पफ्ड राइस, जिसको हम हिंदी में लैया, मुरमुरा या कॉमन लैंग्वेज में मूढ़ी भी कहते हैं। तो पफ्ड राइस इज ऑल्सो अलाउड। इन द सेम वे राइस फ्लेक्स जिसको हम चिवड़ा कहते हैं या पोहा कहते हैं, तो चावल से बना लैया और उससे बना हुआ चूड़ा या चूड़े से जो हम पोहा बनाते हैं वो एनी फॉर्म में अलाउड है। नेक्स्ट हमारा है कॉर्न, उसको इंग्लिश में हम मेज भी कहते हैं, और वेरी कॉमन लैंग्वेज इसको हम मक्का कहते हैं या मकई का दाना कहते हैं, और हम जो भुट्टा, कॉमन लैंग्वेज भुट्टा भी होता है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन वेरी वेरी कॉमन भी है और वो हमारे हर पेशेंट को अलाउड होता है। मक्का इन एनी फॉर्म, मतलब मक्के के आटे की रोटी आपने देखा होगा कि जाड़े में हम लोग बहुत खाते हैं मक्के की रोटी विद चने का साग, तो दिस मक्का इज अलाउड। तो आप मक्का एनी फॉर्म ऑफ मक्का आप ले सकते हैं। देन वी हैव ज्वार, बाजरा। इट कैन बी गिवन बाजरा का, जैसे हम आप देखते हैं कि हम बाजरे का ठकुआ बनाते हैं, तो बाजरे का ठकुआ इज वेरी कॉमन रेसिपी फॉर विलेज पीपल। वी कैन से कि अगर हम रोटी नहीं खाए तो हम बाजरे का ठकुआ मतलब वो थोड़ा सा हम कुछ दिन के लिए रख सकते हैं, तो उसको भी हम प्रिपेयर करके रख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है सिंघाड़ा एंड कुट्टू। सिंघाड़ा जैसे आपने देखा होगा ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि हम लोग सिंघाड़े के आटे की पूड़ी एंड कुट्टू के आटे की पूड़ी बहुत खाते हैं, तो ये वेरी पॉपुलर वही वाला सिंघाड़ा है। और सिंघाड़ा हमारा दोस्त होता है, एक फ्रेश सिंघाड़ा होता है, ड्राई सिंघाड़ा होता है। फ्रेश सिंघाड़ा जो हम जाड़े में हम लोग देखते हैं कि ठेले पे बहुत बॉयल होकर के मिलता है, तो दैट इज सिंघाड़ा। तो उस फ्रेश सिंघाड़ा को भी हम दे सकते हैं। और ड्राई सिंघाड़ा जो हमारा ऑल वेदर में अवेलेबल होता है, जिसको हम ग्राइंड करके आटा बना करके उसका रोटी, उसका पूड़ी या पराठा खाते हैं। समटाइम्स वी आल्सो प्रिपेयर सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी। तो दिस मतलब ओवरऑल अलाउड फूड आइटम्स में जितने हमारे गेहूं और जौ को छोड़कर जो अनाज है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सिंघाड़ा एंड कुट्टू वी कैन गिव। इसमें हमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि जैसा भी हमने साइड में बताया कि एक सिंगल अमाउंट ऑफ या स्मॉल अमाउंट ग्लूटेन शुड नॉट बी गिवन। तो हमें यहाँ पे मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आटा हम पीसेंगे जो चावल का, चने का या मक्का का, ये नहीं करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वी शुड नेवर यूज व्हीट फ्लोर चक्की। we should use this homemade grinder और we can use हमारे जो टिपिकल हमारे मतलब हमारे ग्राइंडर अवेलेबल है, फिर मैं उसको साइड में शो करूंगी तो वो आप यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है ऑल पल्सेस लेग्यूम्स एंड नट्स, मतलब सभी प्रकार की दालें, सभी तरह की फलियां लाइक राजमा, छोला, चना, मटर एंड मूंगफली वी कैन गिव। देन नट्स में हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं लाइक काजू, बादाम, अखरोट, मूंगफली, वॉट एवर यू वांट यू कैन गिव फ्रीली।
एंड देन नेक्स्ट हमारा ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब सभी सीजनल फल, सभी वेजिटेबल्स, मतलब सभी सब्जियां, चाहे वो लीफी वेजिटेबल्स हो, रूट्स एंड ट्यूबर्स हो, ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आर अलाउड। तो ओवरऑल हमारा ये ध्यान क्या है कि हमारा जितना भी जो नाम वाला लिस्ट है उसमें 2 ही लिस्ट है, गेहूं और जौ। इसके अलावा हमारे पास सारी जो खाने की चीजें हैं वो अलाउड है। द नेक्स्ट हमारा आता है दूध, दूध से दही बनता है और पनीर बनता है। देन अगेन वी हैव अ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पनीर हमें घर का बना होना चाहिए, कि आउटसाइड पनीर से हमारा कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं। तो हमें जो हमने पहले ही बताया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूटेन शुड नॉट बी गिवन। सो हमारा जितनी भी मिल्क के और आइटम मार्केट में अवेलेबल है, लाइक दूध से हमारी बहुत सारी मिठाइयां बनती हैं, जिसको हम कहते हैं कि समटाइम्स रबड़ी, समटाइम्स पेड़ा, बर्फी, तो है तो वो दूध का। जनरल पीपल कहते हैं कि नहीं ये दूध का हम ले सकते हैं, बट इट मे बी कंटेमिनेटेड, सो हमको इस चीज को अवॉइड करना है। दूध को हमें घर में लेकर के उसी से दही बनाना है, उसी से पनीर बनाना है। और चूंकि रोज रोज दूध से खोया घर में बनाना मुश्किल होता है, तो हम दूध की जगह सिंपल जो स्वीट्स हमारे होते हैं, लाइक चने के बेसन का लड्डू बना सकते हैं, चावल के आटे का लड्डू घर में बना सकते हैं, और वेरी कॉमन जो हमारा लो कॉस्ट रेसिपी आता है गुड़ और लैया, मतलब पफ्ड राइस को गुड़ के साथ ऐड करके उसका गोला बना करके गुड़ लैया भी एक कॉमन रेसिपी है। देन अगेन वी हैव जाड़े के दिन में जैसे हम लोग तिल खाते हैं, व्हाइट तिल एंड ब्लैक तिल, तो उस तिल का भी हम लड्डू घर में गुड़ के साथ ऐड करके बना सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे स्वीट आइटम हम घर में बना सकते हैं, रेदर देन एडिंग कि हम जी नहीं रोज खोया बनाए, ये नेसेसरी नहीं है। बट मिल्क को, जब मिल्क, दूध का दही और पनीर, ये सारी चीजें हमें घर में ही ऐड ऑन करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑल टाइप ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक मीट, मछली, मुर्गा एंड अंडा, तो इसको भी हम फ्रीली अलाउ कर सकते हैं पेशेंट्स को। एंड अगेन जो हमने सेम चीज मेंशन किया है कि हमारा जो आटा होगा, लाइक चावल का आटा, चने का आटा, मक्के का आटा या बेसन का आटा, इट शुड बी ग्राइंडेड एट होम, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। मतलब यू कैन गो फॉर मसाला चक्की बट नेवर नेवर गो फॉर wheat flour grinder. And in this slide I have shown this टिपिकल जो हमारा आता है, जिसको हम जात बोलते हैं, जात या जाता बोलते हैं, तो ये हमारा स्टोन का बना होता है, जिसको हमारे हम विलेज पीपल के पास ये बहुत होता है। तो इसमें हम एनी टाइप ऑफ सीरियल ग्रेन कैन ग्राइंड, एक्सेप्ट हमें चूंकि बच्चा ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहेगा तो उसमें हमें गेहूं और जौ को नहीं ग्राइंड करना है, टू अवॉइड कंटामिनेशन। इसमें हम वही डाइट ऐड करेंगे जो हमारे बच्चों को अलाउड होता है। इन द सेम वे वी हैव दिस खलबट्टा, जो हमारा बहुत टिपिकल होता है, जिसमें हम थोड़ा सा जो हार्ड आइटम्स होते हैं, लाइक हमारा ड्राई सिंघाड़ा, उसको अगर इसमें हम डाल के 8-10 पीसेस में कर देते हैं, उसके बाद ग्राइंडर में डालते हैं, तो वो इजी हो जाता है, हमारा ग्राइंड होना मुश्किल नहीं होता, वो इजी फॉर्म में ग्राइंड हो जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव दिस कॉमन ट्रेडिशनल सिलबट्टा, जो छोटे दाने के अनाज होते हैं, जिसको हम ओवरनाइट सोक करके ग्राइंड कर सकते हैं। जैसे चने की दाल को हम ग्राइंड कर सकते हैं, इसमें रात में पीस सकते हैं। एंड जो मूंग की दाल का अगर हमें चीला बनाना है या मूंग की दाल की पकौड़ी बनानी है, तो उसको हम सिलबट्टे पे भी ग्राइंड करके बना सकते हैं। देन we have this electric grinder, जो people afford कर सकते हैं उनको हम ये electric grinder बता सकते हैं, जो कि almost 12 to 15,000 के बीच में इसका रेंज होता है। तो इसको हम घर में ले सकते हैं, इसमें any type of cereal grain we can grind. And then we have this mixer grinder, जो हर घर में अवेलेबल होता है। जो चीजें हम इसमें ग्राइंड कर सकते हैं उसको हम इसमें ग्राइंड करेंगे, लाइक कर सकते हैं। Then next we have the slide of this not allowed food items. नॉट अलाउड फूड आइटम्स में हमारा, जैसे हमने देखा कि गेहूं और जौ दोनों ही हमारे डाइट से हटाने होते हैं। तो यूजुअली जौ हमारे घरों में उतना नहीं होता जितना गेहूं का हम कॉमन यूज करते हैं। तो यार मतलब मैंने लिखा है गेहूं और गेहूं का आटा, मतलब गेहूं के आटे से जो भी चीजें बनाते हैं वो हम नहीं देंगे, उसको एक्सचेंज में हम चावल, चना या मक्का देंगे। देन नेक्स्ट वी हैव ब्रोकन, देन वी हैव दिस ब्रोकन व्हीट यानी कि दलिया, एंड सेमोलेना जिसको सूजी या रवा भी कहते हैं। देन वर्मिसेली यानी सेवैया, तो गेहूं, गेहूं का आटा, दलिया, सूजी, सेवैया नहीं देना है। देन नेक्स्ट वी हैव मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम दैट इज रिफाइंड फूड, जिसको हम मैदा कहते हैं। और मैदा से हम जानते हैं कि हमारे मार्केट में मोस्ट ऑफ द जो हमारे रेडी टू ईट फूड आइटम्स है, और या जो हम कहते हैं कि आप जितने भी फास्ट फूड हैं वो ऑलमोस्ट मैदा से बने होते हैं। तो हमें ये मैदे वाले आइटम्स को नहीं देना है। जैसे इसमें मैंने इस स्लाइड में शो किया है आपको दिस जंक फूड, इसमें आप ये देखिए कि मैदा जैसे पहला ये मैदे से हमारे जैसे पहला नूडल्स होता है। नूडल्स में जैसे हमें ऑल टाइप ऑफ नूडल्स, लाइक जितने भी मैगी है, चाउमीन है, मैक्रोनी है, पास्ता है, ऑल टाइप ऑफ नूडल्स वी शुड अवॉइड। इन द सेम वे हमारा बहुत पॉपुलर फीड होता है, जो हम बहुत यूजुअली मार्केट से जाते समय, घर जाते समय या मार्केट पे गया तो खरीदते हुए आता है समोसा, दैट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैदा, तो वी शुड अवॉइड दिस समोसा ऑल्सो। एंड वेरी पॉपुलर फूड दैट इज गोलगप्पा एंड पानी पूरी या पुचका, एंड जो पानी बतासे जिसे हम कहते हैं, ये भी चूंकि मैदा, आटा और सूजी से मिक्स होकर बनता है, तो ये भी हमें अवॉइड करना है। इन द सेम वे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाहर की ग्राइंड की हुई चीजें नहीं ऐड ऑन करनी है, तो जैसे हमारा ये आलू का टिक्की भी मार्केट में अवेलेबल होता है,
बट इटसेल्फ आलू इज नॉट अ ग्लूटेन, बट आलू की टिक्की जब बनाते हैं तो उसमें जो बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं लाइक कॉर्न फ्लोर, मतलब मक्के का आटा यूज करते हैं, तो उसकी ग्राइंडिंग हो सकता है कहीं बाहर हुई हो या मसाला गेहूं की चक्की में पिसा हुआ हो, तो इसलिए हमको जो चाट की दुकान, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में चाट या टिक्की की दुकान कहते हैं, वहां से हमें कोई भी चीज नहीं खानी है, चाहे वो गोलगप्पे हो, वेदर इज आलू टिक्की, वेदर इज दही बड़े हो, तो हमें नहीं देना है। इन द सेम वे हमारे पास जितने भी स्प्रिंग रोल्स होते हैं, जैसे वेज स्प्रिंग रोल, नॉन वेज जो भी, उसका आउटर जो लेयर होता है वो मैदे से ही बना होता है, तो हमें ये चीज नहीं लेनी है। देन वी हैव नेक्स्ट आता है कि हमारे ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स नॉट अलाउड होते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स में हमारे जितने भी ब्रेड आते हैं, बिस्किट है, केक, पेस्ट्री, पिज्जा एक्सेट्रा, तो ऑल टाइप ऑफ ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री एंड पिज्जा नहीं देंगे। ब्रेड में फिर हमारा आता है कि हमारा जी ब्राउन ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड है, या जो हम पाव भाजी खाते हैं पाव वाला ब्रेड है, या बर्गर है, पिज्जा है, हॉट डॉग्स है, इन सारी चीजों को हम अवॉइड करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा है कि ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स, जिसमें हमारे बिस्किट्स में बहुत सारे आते हैं कि स्वीट बिस्किट है, सॉल्टी बिस्किट है, थेप्टेन बिस्किट है, किसी टाइप का बिस्किट हमें नहीं लेना है। देन वी हैव ये होता है कि हम जितने भी कन्फेक्शनरी आइटम है, जिसमें कन्फेक्शनरी में हमारे ऑल टाइप ऑफ स्वीट्स एंड टॉफीज आते हैं, मतलब कन्फेक्शनरी मतलब टॉफी एंड चॉकलेट्स आते हैं, तो कोई भी चॉकलेट या टॉफी हमें नहीं देना है। और स्वीट्स का यहाँ पे मतलब मिठाई, मीठी चीजों से नहीं है, स्वीट्स का यहाँ पे मतलब आउटसाइड की मिठाइयाँ या आउटसाइड की जो चॉकलेट्स है वो हमें नहीं देना है। तो इसमें जैसे मिठाइयों मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि मिठाइयाँ हमें घर की बनी होनी चाहिए, बाहर की मिठाइयाँ हमें नहीं यूज करनी है। Then next we have this very common topic is this ice cream and custard. तो आइसक्रीम भी हमारा आइसक्रीम पाउडर की वजह से हम आइसक्रीम नहीं देंगे। वी कैन प्रिपेयर आइसक्रीम विदाउट एडिंग आइसक्रीम पाउडर। वी कैन प्रिपेयर आइसक्रीम बाय एडिंग कॉर्न फ्लोर, मक्के के आटा डालकर दूध में उसको हम गाढ़ा करके आइसक्रीम बना सकते हैं। इन द सेम वे हमारा जितने भी कस्टर्ड पाउडर है या जो भी पाउडर फॉर्म में लाइक हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, ये हमें नहीं देना है। देज आर ऑल्सो कंटेन ग्लूटेन। जैसे हेल्थ ड्रिंक में हमारे जितने भी है हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, इसमें भी ग्लूटेन होता है। और यूजुअली हम इसको दूध में इसलिए डालते हैं कि बच्चे को एक फ्लेवर मिलता है। और सम पीपल कहते हैं कि नहीं, इससे हाइट वेट भी बढ़ता है, तो हाइट वेट बढ़ता होगा, मतलब जो जनरल पीपल है उनके लिए ठीक है, बट सीलियक डिजीज पेशेंट का जो हाइट वेट बढ़ता है वो यूजुअली जब हम 100% ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करते हैं तो उससे वो हाइट वेट में गेन होता है। तो अगर हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान की जगह हमें जो है जैसे सिंपल शुगर, सौंफ और इलायची का ड्राई पाउडर बना करके वो हम दूध में ऐड करके उससे हम फ्लेवर दे सकते हैं। एंड इसमें जो लास्ट है कि जो हमें लास्ट में मैसेज देना होता है कि जो भी बच्चा या जो भी पेशेंट इस ग्लूटेन फ्री डाइट के हैं उनको यूजुअली क्या होता है कि आउटसाइड फूड हमें अवॉइड करना होता है। मतलब किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में या शादी या बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो उन्हें उन टाइप के फूड को अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट हमारा जैसे होता है कि बच्चा अगर स्कूल गोइंग है तो उसको हम ये बताते हैं कि बच्चा स्कूल जाए मगर स्कूल में वो किसी का लंच शेयर नहीं करे, क्योंकि लंच शेयर करने से फिर वो ये होगा कि अगले के लंच में वो ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं होता है। इन द सेम वे अगर पेशेंट कहीं होटल में जाता है तो भी उसको वो खाना अवॉइड करना है। और फैमिली मेंबर्स को ये ध्यान देना है कि जब भी हमारा पेशेंट या हमारा बच्चा इस तरह से खाना खा रहा है तो उसके सामने हम वैसा ही खाना खाएं जैसा हमारा बच्चा खा रहा हो, जिससे उस बच्चे को लोनलीनेस या उसको सेपरेट वो फील नहीं करेगा फैमिली में। और इस द सेम वे हमको सारी चीजें, वन वर्ड ये है मैसेज कि कॉमन जितने भी हमारे आउटसाइड फूड आइटम्स है, भले वो नमकीन हो, वो कुरकुरे हो, चिप्स हो, वॉट एवर भी रेडी टू फूड आइटम्स जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, उसे हमें अवॉइड करना है सो दैट वी कैन अवॉइड ग्लूटेन 100%. So this is all about. Thank you for your time and attention.